Hello all, myself Pawan and we will be starting maths. तो जो भी maths का session रहेगा, it will go up to from basic level up to JEE level. So coming to my quick introduction, myself Pawan Kumar. I have done my bachelor's with Jadavpur University and completed it in year 2022. After that, I have also appeared in the GATE examination and my all India rank was 144. तो उसके बाद मेरे पास like I had till now 3 years of teaching experience and more than 5 years of doubt solving expertise मतलब doubt solving on the online platform. Coming to our main thing, so I will be teaching you the maths syllabus of maths covering 11 and 12th up to JEE level. तो सारा JEE level का देखेंगे. तो currently for this course I have divided into 4 units. तो पहले हम लोग सारा यूनिट वाइज देखेंगे और इन यूनिट वी विल कवर द theoretical parts as well as the some examples, some numericals, and will take your doubts. That's why I have given allocated the time on the basis of seeing all these scenarios. Theories, concepts up from basic level to J level, covering all the NCERTs, everything. और उसके बाद we will see some examples and again any doubt if you will have. तो पहला यूनिट हम लोग का रहेगा we will start with the set relation functions. In this set relation functions we have sub topics, suppose set and their representation. So we'll be covering in one session which will be approx 2 to 3 hours. So that's why so it will overall take 20 hours for us to complete this chapter, covering everything from the scratch to all the J level which I have told you. कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट, तो नेक्स्ट यूनिट हम लोग का रहेगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट. तो पहले हम लोग देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसका क्या क्या अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है, कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं, और हम लोग जो भी मैट्रिसेस होता है 2 और 3 ऑर्डर का, वी विल टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स और वी विल कवर द थिंग्स अलोंग विद द क्वेश्चंस. तो इसके लिए एटलीस्ट इट विल टेक अस 10 hours to complete this matrix. Coming to the determinant, so determinant we have more topic than the matrix. तो determinant में क्या है, इसका properties आएंगे, evaluation of determinant आएंगे, और हम लोग triangle का area निकालेंगे using determinant property. So these topics will take us approx 5 hours to complete. और एडजॉइंट और फिर उसका प्रॉपर्टीज और इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग समझेंगे. दैट विल टेक अ 7 hour. This will become very easy if you will see the theoretical part like concepts, deep concepts, उसके ऊपर कुछ examples, और then we will go to the with the numericals in deeper level. Again, the last topic of determinant will be test of consistency and solution of simultaneous linear equation in 2 and 3 variable using determinant and matrices. So we will get to know how to solve the matrices and determinant using the properties of matrices and determinant. तो determinant का हम लोग inverse निकाल के कैसे हम लोग solve करेंगे equations, linear of equations का. That is the main concept. तो ये भी बहुत important है सारा चीज. तो हम लोग इसको करेंगे सेकेंड यूनिट में. हम लोग का थर्ड यूनिट रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज. जिससे क्वेश्चंस तो इजी आते हैं बट लाइक अगर हम लोग का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना तो विदाउट लर्निंग द फॉर्मूलाज वी कैन सॉल्व द गुड क्वेश्चंस. तो उसको पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे कि क्या है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी एजीपी क्या है वो सब. उसमें हम लोग एपी अर्थमेटिक मीन क्या है, मतलब कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे कोई भी अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक मीन्स, कोई भी 2 नंबर दिया रहेगा तो ये सारा चीज with the numericals. I'm telling again and again with the questions, solving good number of questions, it will take us at least 10 hours. क्या रिलेशन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन में और समेशन अप टू एन टर्म्स, कोई भी स्पेशल सीरीज हम लोग जाएंगे लाइक एपीजीपी है एजीपी, उसके अलावा भी कुछ स्पेशल सीरीज होते हैं तो हम लोग उसको भी देखेंगे और उसको भी कवर कर लेंगे सेकंड पार्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज का. थर्ड पार्ट हम लोग का रहेगा एजीपी. एजीपी इज लाइक व्हेन वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो दैट विल टेक अस लेस देन वन सेशन विच विल बी ऑफ 2 hour, और उसको सारा कवर कर लेंगे. उस पर जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग देख लेंगे. Coming to the last one, trigonometry.
तो बच्चे उसको सोचते हैं कि 10 में पढ़ लिए और देन इट विल गेट कवर्ड अप, तो ऐसा नहीं होता। लाइक वी हैव डीप कॉन्सेप्ट्स लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, आइडेंटिटीज, तो वो सब है। और उसे थोड़ी अगर आइडेंटिटीज वगैरह ध्यान से देखा जाए तो फिर जेई का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो उसको भी हम लोग करेंगे थोड़ा अच्छा से इलाबोरेट मैनर में, वी विल कवरिंग इट इन इलाबोरेट मैनर। आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे, इक्वेशंस देखेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। और देन हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और उसका इन्वर्स को भी इसी में कवर कर लेंगे। वी हैव अनदर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स, जो कि आपको 12th में रहता है। तो चूंकि हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं तो एक ही बार में दोनों देखेंगे, फंक्शंस भी देखेंगे और उसका इन्वर्स, इन्वर्स का ग्राफ देखेंगे, हाउ वी सी, हाउ वी कैन प्लॉट, और क्या उसका डोमेन रेंज है, सारा चीज इसमें देखेंगे। Again, the last topic will be trigonometric functions or square properties with the height and distance. So this will remain our fourth unit. So today in this topic, in this session, I will cover a small topic of sequence and series. तो ठीक है, तो पहले सीक्वेंस सीरीज में अंदर जाने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये सीक्वेंस सीरीज होता क्या है। तो सीक्वेंस, सबसे पहले पहला वर्ड है सीक्वेंस। ये वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ का अगर कोई कलेक्शन दिया हुआ है, मतलब किसी थिंग्स का हो या फिर क्रिकेटर्स के कलेक्शंस हो, किसी चीज़ का अगर कलेक्शंस आपके पास है तो आप उसको बोलोगे कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, आई हैव अ सीक्वेंस। इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, सीक्वेंस ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, सीक्वेंस ऑफ बर्ड्स, सीक्वेंस ऑफ पेन, सीक्वेंस ऑफ नंबर, तो एनीथिंग। तो जो सीक्वेंस होता है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो उसको हम लोग कोई नंबर से करेंगे। पहला ये टर्म है, दूसरा ये टर्म है, तीसरा ये टर्म है। तो जो टर्म होते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं A1 A2 A3 से। ये सब बोलते हैं टर्म्स है वो सीक्वेंस का। सीक्वेंस में तो ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे ना, तो वो हर एक को हम लोग टर्म बोलेंगे। A1 मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट इज ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो अगेन द सेम थिंग, 1 2 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो अगर हम A1 A2 A3 बोल रहे हैं तो कोई बोलेगा कि nth टर्म कितना होगा सपोज, तो उसको हम लोग बस डिनोट कर देते हैं Tn से। Tn इज द टर्म और n nth टर्म, कि कोई n, अब n की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। अगर 1 आप डालोगे तो आपको T1 मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। 2 डालोगे तो T2 मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हम दिए सीक्वेंस का, 0 7 14 1 4 7, ये 2 4 6 8, तो ये सब सीक्वेंस है। अब हम बात करेंगे सीरीज क्या है भाई। तो सीक्वेंस तो पता चल गया तुमको। अगर हम सीक्वेंस को ऐड करते हैं, इफ वी वांट टू गेट द समेशन, मान लो कुछ हमारे पास नंबर का सीक्वेंस है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा वो क्या बन देगा? सीरीज देगा। तो किसी चीज का हमारा जो सीक्वेंस का एडिशन होगा, जिसके T1 T2 आप लिख रहे थे, टर्म 1 टर्म 2 ऑफ एनी सीक्वेंस अप टू Tn, अगर आप उसको सम कर देते हो, बीच में आप एडिशन कर दिए, तो आपको मिल गया एक सीरीज। तो सीरीज को आप कैसे करोगे? चूंकि ये समेशन है इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एसएन से। जैसे Tn से आपने टर्म किए रिप्रेजेंट, वैसे हम लोग समेशन को करेंगे एसएन से। तो ये एस क्या डिनोट करेगा? सम, और एन क्या करेगा? nth टर्म, समेशन अप टू nth टर्म। तो बस वही। तो एसएन क्या हो गया भाई? C1 T1 प्लस T2 अप टू Tn। ये जाएगा कहाँ तक? Tn तक। तो ये हम लोग का हो गया सीरीज। तो ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज में एक आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एपी, वी कॉल इट, छोटे में एपी बोलते हैं। तो ठीक है, ये एपी क्या है? ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन जो नंबर बढ़ेगा, हर एक टर्म रहेगा ना, दैट विल हैव कांस्टेंट डिफरेंस, देयर विल बी कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ सीक्वेंस। मतलब क्या समझे आप, कि अगर A1 था, A2 था, A3 था, तो हर एक दो टर्म आप ले लोगे, कंसेक्यूटिव टर्म ले लोगे, तो इट विल हैव अ कांस्टेंट डिफरेंस। जैसे पहला टर्म सपोज A है, उसमें हम D ऐड कर दिए तो क्या बन गया? A प्लस डी। तो अगला हमें फिर D ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन करना है। तो अगर डी ऐड किया आपने ए प्लस डी में, तो वो ए प्लस टू डी बन गया। फिर आपने ऐड कर दिए तो वो थ्री डी बन गया। तो हम लोग वैसे ही किए कि हमारा जो T1 T2 3 है ना, वो सब में कांस्टेंट टर्म ऐड होते जा रहा। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें कांस्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट है, तो वैसा सीक्वेंस को हम लोग बोल देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट विल बी नोन एज एपी। तो कोई एग्जांपल आप देख लो, 2 4 6 8, इसमें देख लो, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 में कितना ऐड हुआ है कि ये 4 बन गया। तो 4 माइनस 2 किए हम लोग, 4 माइनस 2 किए तो 2 हुआ, तो 2 ऐड हुआ तो 4 बन गया। फिर 4 में 2 ही ऐड करना पड़ेगा, जो डिफरेंस है 6 बना। फिर 6 में 2 ही ऐड करना पड़ेगा 8। तो ये तो मेरा सीक्वेंस है भाई, ये कलेक्शन है, तो ये सीक्वेंस है, बट ये कैसा सीक्वेंस है? एपी का सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है।
तो बस सेकंड पार्ट में वही डिनोट किया गया है कि आप T2 माइनस T1 देखोगे, 4 माइनस 2, यू कैन सी 4 माइनस 2, तो क्या आया 2 आया। आप T3 माइनस 2 T2 कर लो, मतलब 6 माइनस 4 करो तो भी आपको 2 आएगा। मतलब सारे का कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का नाम दे दिया गया कॉमन डिफरेंस। तो कोई भी अगर सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस किसका एग्जांपल है, एपी का, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी किसका एग्जांपल है, एपी का, क्यों, 1 2 3 4, हर एक टर्म में हम एक एक ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो गया वो, एपी हो गया। तो हम लोग इसका जनरल टर्म देखेंगे, जनरल टर्म कैसे डिनोट करते हैं। तो जो जनरल टर्म होता है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टीएन हम बताए थे आपको कि nth टर्म है। तो nth टर्म में अगर ये है तो ये a क्या है, n क्या है, d है। ध्यान से, a मेरा था फर्स्ट टर्म, इफ यू विल सी ओवर हियर, a था फर्स्ट टर्म, और n है nth टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो अगर कोई आपको जनरल टर्म निकालना है, अगर आपको दिया हुआ है ap और कोई आपको nth टर्म निकालने हैं, तो उसका सिंपली फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वो पता चल रहा है आपको, क्यों, पहला टर्म था a, पहला टर्म में एक भी डी ऐड नहीं हुआ, और दूसरा टर्म है a प्लस डी, मतलब दूसरा टर्म में एक ही डी ऐड हुआ। तो आप बता सकते हो कि nth टर्म में कितना ऐड होगा, उससे n से कम ऐड होगा, n माइनस वन इंटू डी, वही तो है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि हमारा टी एन एन टर्म क्या है इसमें, जो 2 4 6 8 था। तो a हमारा क्या है 2, तो 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना था, कॉमन डिफरेंस 2 था, तो 2, इसको एक्सपैंड किए तो ये 2n आ गया। तो आपको लिखने आ गया, कोई भी अगर एपी दिया रहेगा तो उसको nth टर्म तो आप लिख लोगे, सिंपली फॉर्मूला यूज करना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन टर्म है तो उससे एक कम लेंगे, एन माइनस वन, खत्म। एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई। तो ये क्वेश्चन में ध्यान से, क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे, जो दिया रहेगा पहले वो नोट डाउन करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, तभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे फिफ्थ टर्म बोला है ये एपी का 17 है, और सेवेंथ टर्म बोला है 15 है, तो हम लोग को निकालने कौन से टर्म है, 22th टर्म। ठीक है, नो वरीज। जो दिया हुआ फिफ्थ टर्म ना, हम फिफ्थ टर्म लिखेंगे। हम पहले जानते हैं कि एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी फाइव कितना होगा, ए हमको पता नहीं, ए लिख दिए, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन तो पता है ना फिफ्थ टर्म, तो 5 माइनस वन 4, तो ए प्लस फोर डी हो गया। ये दिया हुआ है आपको 17, आपका एक इक्वेशन रेडी। एक और दिया हुआ 7 टर्म, तो a प्लस सेवन माइनस वन 6, जैसे 8 माइनस वन था तो 60, ये हो गया 15, बोला है 7 टर्म 15 है। बस आप कुछ नहीं करना है, आपको दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, आपको सॉल्व करना है 22 टर्म, आपको a और d पता चल जाएगा, दोनों के इक्वेशन सॉल्व सॉल्व करोगे, दो वेरिएबल है, कुछ नहीं करना, दोनों को आप सब ट्रैक कर देना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो a में से गया खत्म, 6 6d माइनस 4d 2d, और 15 माइनस 17 माइनस 2 डी इक्वल टू माइनस वन, डी इक्वल टू माइनस वन पुट करोगे इसमें किसी भी इक्वेशन में, वहां से a आ जाएगा, माइनस वन यहाँ पुट करो तो a, और माइनस फोर इधर गया तो प्लस फोर, 17 प्लस फोर 21, तो नाउ वी हैव a एंड d। तो हमको 22 टर्म नहीं आ जाएगा क्या, एन टर्म निकालने के लिए हमको बस a चाहिए और d चाहिए, जो कि हमको अब पता चल गया। तो टी ट्वेंटी क्या करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह हम लोग निकाले हैं 21 प्लस एन एथ टर्म 22, एन 22 माइनस वन, और डी की जगह पुट कर देंगे माइनस वन। इफ यू विल सॉल्व तो 21 माइनस 21 इट विल बिकम जीरो, तो कुछ नहीं, आंसर विल बी जीरो। तो बस ऐसे ही करना है, अगर आपको कुछ नहीं करना, जो आप फॉर्मूला पढ़े ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, वी विल राइट the things and will solve step by step, we will simply reach the answer। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो दिस वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, and I just want to thank you all. We will see if we will have more topics in the next session. Thank you once again.